Hello students, welcome to SLAS Institute of English in collaboration with Pragyansh classes. Today I am going to explain you the fourth poem which is prescribed in your book First Flight of class 10th, and the title of the poem is How to Tell Wild Animals. This poem is written by Caroline Wells. So Caroline Wells, basically she was an American poet, and she was born on 18 June 1862 and she died on 26 March 1942. And when she was born in Rahway, New Jersey in the United States of America. And after finishing her school, she worked as a librarian, and her first book was published in 1896, and the total number of collection what she is having, this credit goes to 170 books. But during the first 10 years of her career, she concentrated only on poetry, humor, and children books. Later, she devoted herself to the mystery genre. So, among the most famous of her mystery novels were the Flaming Stone detective stories. It was very popular. So, this was the background of the poet, can say poetess. Now, I'll discuss some central ideas or the main theme about the poet and what is the style of the poem. So, this poem basically it is a humorous poem. The style of the poem is humorous, you can say. So, what happens in humorous poem? Here, especially taking into consideration this poem only, there are many dangerous ways to identify different wild animals. But the words which has been used by the poetess are emotional. Sometimes it is ironical also. Sometimes it is humorous also. So it is the mixture of all these devices, poetical devices. But most of the words are very emotional and humorous. So what happens where the humor goes? If you see a huge terrible beast coming to you, so what will happen? So definitely you'll have fear. But here in this poem, the humor is created by various beasts of prey in a very different way. You can say differently. For the tiger, especially Bengal tiger, very noble word is used. For the leopard, different words are used, which will not create fear in you. Sometimes it is mentioned that you hug the animals friendly, but it never happens. It leads to fatal results. The weeping of the crocodile, the hyenas are there, the merriment of the hyenas are there. So many things are discussed over here in this poem. So let's start the poem. But before starting, there is something written in the box. We should discuss this thing also. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. Here, the rhythm is also the poet is with all the rhythm, and the rhyming scheme of the poem is A B.
AB and CC. So it means that all the stanzas are of 6 lines. So AB and CC is the rhyme scheme. So I am going to start the first stanza of the poem. If you, if ever you, if ever you should go by chance to jungles in the east, इसका मतलब ये हुआ, आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग इन हिंदी ऑल्सो, यदि आपको कभी पूर्व की दिशा में यानी कि इन द ईस्ट जंगल में जाने का मौका मिले, इफ यू एवर या इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि आपको कभी पूरब दिशा में जंगलों में जाने का मौका मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, टाउनी मीन्स होता है ब्राउनिश, और बीस्ट का मतलब यू नो वाइल्ड एनिमल्स, तो भूरे रंग का अगर जंगली जानवर, यानी कि एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, सामने मिल जाना, यानी कि यदि वहां आपके सामने एक बड़ा सा विशाल सा लार्ज और भूरे रंग का, बादामी रंग का या पीले रंग का जानवर आ जाए, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और यदि वह जानवर इस प्रकार दहाड़े कि आपकी जो हालत है ऐसा लगे कि आप मरने जैसी हो गई, डाइंग, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप ये समझ जाएंगे, आप ये जान जाएंगे कि वह एशियन लायन है, एशियन शेर है। अगेन आई एम रिपीटिंग, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian land. आप देखें, मैं बोला था स्टार्ट में ही कि इसकी राइम स्कीम ABCC है। आप देखिए फर्स्ट लाइन का चांस वर्ड आया, उसको A मान लीजिए, ईस्ट को B मान लीजिए, फिर एडवांस चांस के साथ मिल रहा है तो फिर वो A हो गया, ईस्ट के साथ बीस्ट का राइमिंग बन रहा है तो फिर वो B हो गया, यानी AB हो गया, और डाइंग लायन ये साउंड एक है इसलिए इसको C मान लिया गया। दिस इज द राइम स्कीम। तो यदि आपको कभी पूरब की दिशा में जंगलों में जाने का मौका मिले और यदि वहां आपके सामने एक विशाल सा भूरे रंग का या पीले रंग का या बादामी रंग का, टाउनी का मतलब बहुत होता है, जंगली जानवर आ जाए और वह इस प्रकार से दहाड़ना शुरू करे, रोर करना शुरू करे कि आपकी हालत मरने जैसी हो जाए, तो आप समझ जाइए, आप जान जाइए कि वह एशियन शेर है। सो दिस इज द explanation of the first stanza. Now I am coming to the next stanza, second stanza. Or if sometime when roaming round, roaming का मतलब होता है wandering aimlessly, इधर उधर आवारा घूमना बिना किसी एम का, बिना किसी लक्ष्य का, लक्ष्यहीन इधर उधर भटकना, a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब देखिए यहां पे और लिखता है, और यदि किसी समय sometime when roaming round, इधर उधर घूमते हुए, A noble wild beast greets you. एक बहुत ही भद्र, बहुत ही नॉबल जंगली जानवर आपका वेलकम करने लगे, आपको ग्रीट करने लगे, आपको अभिवादन करने लगे, यानी कि आपका सामना हो जाए उसके साथ। With black strips on a yellow ground, और ग्राउंड का मतलब वहां उसका स्किन है, और उस पर काली धारियां, स्ट्रिप्स का मतलब धारियां, और उस पर काली धारियां उसके येलो ग्राउंड पे, यानी कि उसकी पीली पीली जो पीठ है
यानी स्किन है, उसके जो बॉडी है उस पर बनी हुई हो, जस्ट नोटिस, ध्यान दीजिएगा, इफ ही ईट्स यू, कहीं ऐसा नहीं कि आपको वो खा जाए। दिस सिंपल रूल, ये जो सबसे सामान्य सा सरल सा मैंने नियम जो आपको बताया, हेल्प यू लर्न, आपको जानने में मदद करेगा, द बंगाल टाइगर टू डाइसर्न। डाइसर्न का मतलब पहचानना, फर्क पहचानना, डिस्टिंग्विश करने, यानी कि आपको समझ लेना चाहिए कि ये बंगाल का बाघ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a novel wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. और यदि किसी समय इधर उधर घूमते हुए एक बहुत ही भद्र जंगली जानवर से आपका सामना हो जाए, वो आपका अभिवादन करने लगे, आपका स्वागत करने लगे, जिसके शरीर पर पीली धारियां, पीली जो काली काली धारियां हैं और पीले पीठ हैं, तो आपको वह ध्यान रखना है कि आपको वो खा जाएगा। और मैं बिल्कुल आपको सरल नियम बता रहा हूं कि इसको पहचानने में आप चूक नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए कि ये बंगाल का बाघ है। ये था सेकंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड स्टैंजा। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है आराम से चलना, चहलकदमी करते हुए चलना, वॉकिंग, लीजरली वॉक करना। अ बीस्ट यू व्यू whose hide, hide का मतलब स्किन होता है, स्किन ऑफ एनी एनिमल, with spots is peppered, peppered का मतलब होता है धब्बेदार, जिसपे पेपर एक्चुअली होता है काली मिर्च, देखें आप लोग, गोल मिर्च, तो उस तरीके से धब्बा लगा हुआ उस पर। As soon as he leapt on you, और जैसे ही वो आपके ऊपर में उछलेगा, जंप करेगा, you'll know it is the leopard, आपको समझ जाना चाहिए कि ये पेपर्ड, जिसका हाइड जो है पेपर्ड है, जिसकी जो चमड़ी जो है, जिसके जो स्किन है उस पर काली मिर्च की तरह धब्बे लगे हुए हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए, और जैसे ही वो तुम पर जंप करे तो समझ जाना है कि ये लेपर्ड है। और फिर इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और फिर वो और कुछ नहीं करेगा, आपको कराहने से आपका कुछ नहीं होगा। He will only leap and leap again, वह तुम्हारे ऊपर में बिल्कुल छलांग लगा देगा बार बार। यानी कि इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, यदि आगे बढ़ते हुए जंगल में, अ बीस्ट यू व्यू, ऐसा जानवर, जंगली आप जानवर दिखाई दे जिसके की जो पीठ है, जिसके जो स्किन है काली मिर्च जैसे धब्बों से ढका हुआ है, और ज्यों ही वह आपको देखते ही छलांग मार दे, आपको जान जाना चाहिए कि वह लेपर्ड है, तेंदुआ जानवर है, और वह पीड़ा से नहीं दहाड़ेगा। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ऐसा नहीं कि वह, उसको कोई पीड़ा हो रही है इसलिए वो दहाड़ रहा है, उसको कोई कष्ट है इसलिए वो रोर कर रहा है। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह दहाड़ दहाड़ के तुम्हारे ऊपर बार बार वह जंप करेगा, छलांग लगाएगा। इसलिए जंगल में आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको इस तरह का कोई जानवर दिखाई दे जिस पर कि काले काले धब्बे हो उसके स्किन पे, और वह देखते ही छलांग मारे, तो आपको जान जाना चाहिए कि वो लेपर्ड जानवर है, और वह, उसको कोई कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है जिससे कारण वह दहाड़ रहा है, बल्कि वह दहाड़ दहाड़ के आपके ऊपर कई बार अटैक करेगा, जंप करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। इफ when you are walking round your yard, यार्ड का मतलब होता है आंगन, खुला जगह, कोई खुला जगह, चारों तरफ से घर हो, उससे इनक्लोज्ड बाई, ऐसा होता है इनक्लोज्ड एरिया एडजॉइनिंग अ हाउस, ऐसा कर सकते हैं। यू मीट अ क्रीचर देयर, और तुमको वहां पे किसी जीव से मुलाकात हो जाए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और तुमको बिल्कुल इंप्रेस करने, गले लगा ले। बी श्योर इट इज अ बियर, तुमको ख्याल आ जाना चाहिए तुरंत कि ऐसा हरकत भालू करता है। If you have any doubts, I guess he will give you just one more cares. अगर आपको कोई इसमें शंका है, संदेह है, तो मैं अनुमान लगा रहा हूं कि वह आपको खूब प्रेम पूर्वक कैरेस करेगा, यानी कि वह फिर आपको
लविंग टच देगा, आलिंगन कर लेगा, प्रेम पूर्वक आपको स्पर्श करना शुरू कर देगा। यानी कि यदि आप अपने आंगन के चारों ओर घूम रहे हैं, इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, और आप वहां एक प्राणी से मिल लिए, यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको खूब कस करके पकड़ लिया, बी श्योर इट इज अ बियर, तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि यह भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर कोई आपको संदेह हो रहा है, कोई शंका हो रही है, आई गेस, जो मैं अनुमान लगा सकता हूं, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, वह आपको फिर दोबारा एक बहुत ही अच्छा हग करेगा, आपको टच करेगा, आपको प्रेम देगा। आपको समझ जाना चाहिए कि भालू ही ऐसा कर सकता है, ये भालू का ही कैरेक्टर है। So this is the explanation of this chapter. Now come to the next. Though to distinguish beasts of prey, beasts of prey किसको बोलते हैं? जो शिकार करने वाले जो जानवर, शिकारी जानवर होते हैं, वैसा जानवर जो अदर एनिमल्स को, अदर क्रीचर्स को किल करके वह फूड इनटेक करता है। A novice might non plus, और novice का मतलब होता है जो नौसिखिया होता है, अभी एकदम बिगनर होता है, लर्नर होता है, और नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज रहता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हिना दस, और आपको समझना चाहिए कि ये क्रोकोडाइल है, और टेल फ्रॉम द हिनास दस, हिनास का मतलब होता है लकड़बग्गा, हिनास कम विथ मेरी स्माइल्स, और ऐसा कहा जाता है कि हिनास जो होते हैं वह बड़ी खुशी खुशी आते हैं, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, अगर लेकिन रोता हुआ कोई जानवर दिखाई दे तो वो क्रोकोडाइल होगा। यहाँ पर दो जानवर की चर्चा की गई, अभी तक हम लोग एक एक जानवर को ले रहे थे। अभी पहले वाले स्ट्रेंजा में हम लोगों ने लिया था एशियन लायन को, फिर बंगाल टाइगर को लिया, फिर लेपर्ड को लिया, फिर हम लोगों ने बियर को लिया। अब यहाँ पे दो जानवर को एक साथ लिया है। पोएट ने बोल रहा है कि यद्यपि जो शिकारी जानवर है, बीस्ट ऑफ प्रे है, उसमें अगर डिस्टिंग्विश करना, उसमें अगर तुमको पहचानना हो, विभेद करना हो, और नोवाइस माइट नॉन प्लस, तो जो नौसिखिया जानवर होता है वह तुमको बिल्कुल कंफ्यूज्ड मिलेगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि एक मगरमच्छ को लकड़बग्गे से आप कैसे पहचान सकते हैं कि दो जानवर है, एक मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, एक लकड़बग्गा है। टेल फ्रॉम द हेनास दस, हेनास कम विथ मेरी स्माइल्स, तो आप पहचानने का क्या तरीका होगा कि आपको इस प्रकार से पहचानना चाहिए कि लकड़बग्गा जो है खुशी भरी मुस्कान जो होती है उससे दिखाई देगा, लेकिन अगर वो रोता हुआ दिखाई दिया तो मगरमच्छ हो गया। हम लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ का आंसू। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, यद्यपि शिकारी जानवरों को पहचानना, अदरवाइज माइट नॉन प्लस, एक नौसिखिया जो है बिल्कुल कंफ्यूज रहेगा, बिल्कुल हतप्रभ रहेगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हिनास दस, और एक मगरमच्छ को लकड़बग्गे से आप इस प्रकार पहचान सकते हैं कि हिनास कम विथ मेरी स्माइल, लकड़बग्गा खुशी भरी मुस्कान से आता है, बट इफ दे वीप, अगर उनमें से कोई रो देता है तो वह मगरमच्छ होता है। अब आते हैं हम लोग लास्ट स्टैंजा पर। द ट्रू कैमोलियन इज स्मॉल, द ट्रू कैमोलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there's nothing on the tree, it's the chameleon you see. Chameleon गिरगिट। अब देखिए, अब यहां पर बता रहा है कि द ट्रू कैमोलियन इज स्मॉल, जो असली गिरगिट होता है वो छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक तरह की छिपकली की तरह का चीज होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान भी नहीं होते, एंड नॉट अ सिंगल विंग, उसका एक पंख भी नहीं होता। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ नहीं है तो आपको समझ जाना चाहिए इट इज द कैमोलियन यू सी, वहां पर और कुछ नहीं है तो वहां गिरगिट जरूर है। यानी ठूंठ पेड़ पर, बिना पत्तियों वाले पेड़ पर, सूखे पेड़ पर गिरगिट जरूर मिल जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द लास्ट स्टैंजा। सो as I told you, the rhyme scheme of this poem is AB, AB and CC. You will find it everywhere.
So again, in short, I am explaining the poem, that this poem is a humorous poem. In this poem, the poet has suggested some dangerous ways of identifying wild animals. There are many ways to identify wild animals. Each and every stanza describes varieties of wild animals. And the suggestions in each and every stanza, what the poetess has given, it creates a humor. If his the poetess says that if you ever visit to the jungles in the east, it happens that you have to encounter a lion or a tiger or a leopard. So the poetess has given the way to identify them by the way they attack on you, identify while dying. The idea makes you laugh. These are the ideas what makes you laugh. Further, the poet also tells you to identify a bear from its friendly attitude because it hugs. Hard bear, it hugs. The hyenas, they laugh. Crocodile, it weeps while swallowing its victim. If you see nothing on the tree, so you have to guess that there is a chameleon, as it has the quality to change its color according to its surrounding. तो यहाँ पर क्या देखें कि अलग अलग जानवर जो हैं वो जब अटैक करते हैं, उनके अटैक करने का तरीका अलग होता है. कोई गरज करके आता है, कोई तुमको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आता है, कोई तुम पर जंप करके आता है, कोई तुमको गले लगा करके आता है, कोई रो के आता है, कोई मुस्कुरा करके आता है, और कोई बिल्कुल ये कैमोलियन की तरह रंग बदल के आता है. लेकिन सबका एक ही उद्देश्य होता है, तुम पे अटैक करना. इसलिए बी वेयर ऑफ दीज एक्टिविटीज व्हेन यू आर इन द जंगल. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा आइडिया भी आपको मिला है ह्यूमरस तरीके से कि अगर शेर आप पर कैसे अटैक करेगा, क्रोकोडाइल्स आपके पास कैसे आएगा, हेनास कैसे आएंगे. तो कितना अच्छा ह्यूमर इसमें दिखाया गया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द पोएम. होप you all have understood the things in a very beautiful way, proper way. I'll come with the next poem next in the next session. Thank you.